Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 3 of the chapter Electric Charge and Field. The previous lecture I may discuss about different methods of electrifying or charging a body. We discuss about the method of friction, the method of induction and the method of conduction. तो आज मैं डिस्कस करिबा ए चैप्टर गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक. द टॉपिक नेम इज Coulomb's law. So students, we know that two charges exert electrical forces on each other. The electrical force may be attractive, it may be repulsive depending on the nature of the charge particles. Two like charges repel each other and two unlike charges attract each other. तामाने जदि positive charge और positive charge थिबो, they will repel each other. A negative charge and negative charge, they will repel each other. But a positive charge will attract a negative charge. तामाने यदि similar type रो charge थिबो से माने repulsive force apply करिवे. यदि dissimilar type बा unlike type रो charge थिबो then they will attract each other. For example, two protons or two electrons, they will repel each other because proton is positive, so two protons will repel each other. Similarly, electron होजी गोटे negative charge particle, so if you take two electrons then they will repel each other, but a proton will attract an electron. So this is the nature of the force between two charge particles. But आमे जानिचे जे force होची गोटे physical quantity, it means we can measure the force, and we also know that force is a vector quantity. It means force has magnitude as well as direction. So now the question arises, how to measure the electrical force between two charged particles? Is there any law or is there any formula to calculate the force between two charges? Yes, there is a famous law known as Coulomb's law, which helps us to calculate the electrical force between two charged particles. तो आजिर भिडियो रे आमे डिस्कस करिबा what is the statement of Coulomb's law and how can we calculate the electrical force between two charged particles by using this Coulomb's law. So let's begin. So first I will write the statement of Coulomb's law and then I will try to explain it. So Coulomb's law statement कौन कहूची ना, the electrostatic force of attraction or repulsion, the electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges, is directly proportional to the product of magnitudes of the two charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. So this is the statement of Coulomb's law. Again I am repeating it. The electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो ए स्टेटमेंट रे मीनिंग कोन, सपोज आम पाखरे दुईटा पॉइंट चार्ज अछि Q1 and Q2. Okay, Q1 and Q2 are the two point charges. And R is the separation or distance between them. So now we are going to find the electrical force by the electrostatic force between these two point charges. तो Coulomb's law कौन कहूची, Coulomb's law कहूची जे आमे जो दुटा चार्ज पार्टिकल नैचे ताको भितरे जहाँ भी आसीबो इलेक्ट्रिकल फोर्स आसीबो
that force depends on which quantities? Force कहाँ पर depend करिवो ना force होची directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges. ता माने आमे कहि परिबा मैथमेटिकली कोन लिखिबा एठी ना F is directly proportional to Q1 into Q2. तो जो आमे दुटा चार्ज नै छै से दुटा चार्ज रो जो मैग्नीट्यूड थिबो ताके मल्टीप्लाई कर देबा and force is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges. ता माने जदि आमे चार्ज रो मैग्नीट्यूड को बढ़े देबा then the force between them will also increase. Okay, next कोन कहला that force is inversely proportional to the square of the distance between them. ता माने F is inversely proportional to the square of the distance between them. F is proportional to 1 by r square. ता माने जदि आमे दुटा चार्ज भितरे सेपरेशन बा डिस्टेंस को इंक्रीज करिबा देन द फोर्स बिटवीन देम विल डिक्रीज. केमती कमिबो स्क्वायर टाइम्स. ता माने जदि आमे डिस्टेंस को डबल कर देबा द फोर्स बिकम्स 1/4 बा 1/4 टाइम्स. जदि आमे डिस्टेंस को ट्रिपल कर देबा बा 3 टाइम्स कर देबा देन द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स विल बिकम 1/9 टाइम्स एंड सो ऑन. ता माने जदि आमे चार्ज रो मैग्नीट्यूड को बढ़ेबा त फोर्स बढ़िबो किंतु जदि आमे डिस्टेंस को बढ़े देबा तो फोर्स कमी जिवो. सो ऑन दिस फैक्टर्स फोर्स डिपेंड्स. ता सहित आउ कहा पर डिपेंड करिवो द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस. आमे जो दुरा चार्ज नै छै से दुरा चार्ज भितरे को मीडियम अछि वैक्यूम अछि ना एयर अच्छी ना ग्लास अच्छी ना वाटर अच्छी ना प्लास्टिक अच्छी ना को टाइप रो मीडियम अच्छी ता ऊपर भी डिपेंड करिवो. तो आमे ए टाइप रो इक्वेशन क्लास 11 रे पढले जोडा होची न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आमे कोन पढले ठीक मन पकेबा जदी दुईटा पॉइंट मास थिबो बा ऑब्जेक्ट थिबो तर मास थिबो m1 और m2 एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. तबने F थिला proportional to m1 into m2 and F was inversely proportional to r square by F proportional to 1 by r square. But सही केस रे हम जो डिस्कस करथले the force of gravitation between two bodies does not depend on the nature of intervening medium but it does not depend on the medium between the two bodies by between the two point masses. किंतु Coulomb's law रे आमे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विषय डिस्कस करूचे the electrostatic force between two charged particles depend upon the nature between the two charges. जदि आमे मीडियम को चेंज करी जिबा then definitely the force between them will change. Which force? The electrostatic force. Okay. तो आमे यदि आको कंबाइन करिबा तो आमे कोन लिखि परिबा F proportional to Q1 into Q2 divided by R square. ठीक है जी. That implies F equal to some constant K Q1 Q2 divided by R square. So what is K? K होची गोटे proportionality constant. Okay. What is K? K हला गोटे proportionality constant. Proportionality constant. जेमती हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन केस रे हमें लिखुतले F इक्वल टू G कैपिटल G m1 m2 by r square एंड कैपिटल G को हमें कोन कहतले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सेमिति हमें कूलम्स लॉ रे गोटे कांस्टेंट पाइबा F इक्वल टू ए कांस्टेंट K into Q1 Q2 by r square. तो ये जो K अछि K को हमें कहि परिबा गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बा कूलम्स कांस्टेंट और आके कहि परिबा कूलम्स कांस्टेंट. Coulomb's constant. तबे टिका कंपेयर करिबा आमे जो पढितले जे F होची कोन ना G m1 m2 by r square. Let me write here G m1 m2 by r square. एटा होची न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रो फार्मूला F इक्वल टू G m1 m2 by r square. एठी में कोन पहिले F होची इक्वल केते K Q1 Q2 by r square. त हम दे दुरे इक्वेशन कंपेयर करिबा these two equations are similar equation. किंतु एठी जो कांस्टेंट अछि G और एठी कोन अछि कांस्टेंट K अछि दे हैव सम डिफरेंसेस. डिफरेंस ले कोन ना ए जो हमें G लिखिचे द वैल्यू ऑफ G
इज ऑलवेज कांस्टेंट इन ऑल मीडिया आ कमे कहूचे यूनिवर्सल कांस्टेंट तमाने आमे जे कोनोसी मीडियम नबा सब मीडियम रे जीरो वैल्यू सेम रहइबो कि आमे कूलम्स लॉ रे जो के लिखुचे माने जो कांस्टेंट अछि के से के रो वैल्यू सब मीडियम पई समान नहे आमे दी मीडियम को चेंज करिबा देन the value of k will also change. This is the difference between the universal gravitational constant and the Coulomb's constant. तो हम जेमती कहले दुईटा चार्ज भितर जो फोर्स रहिबो से फोर्स टा डिपेंड करिबो कहा ऊपर ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस तो से जो नेचर आमे यदि चेंज करिबा आमे देबा मीडियम को चेंज करिबा तो ए जो k र वैल्यू चेंज हबो आ जेहेतु k र वैल्यू चेंज हबो तो डेफिनेटली फोर्स भी चेंज हबो तो हम देखिबा ए जो k र वैल्यू केते आसीबो तो यूजुअली कोन हुए ना आमे जते बडे दुटा चार्ज भितर फोर्स बाहर करू यूजुअली बाय डिफॉल्ट आमे इमेजिन करू बा आमे अज्यूम करू जे द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज एयर और वैक्यूम ठीक अछि तो जदी आमे बाय डिफॉल्ट एयर बा वैक्यूम विषय कथा करू कथा होचे तो k रा वैल्यू मु केते लिखिबी एटा हे जिवो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो मन रखता k रा वैल्यू केते लिखिबा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट केते बडे जदी में वैक्यूम रे अछि इन वैक्यूम और फ्री स्पेस वैक्यूम जहा फ्री स्पेस से बा हमें कहि परिबा एयर भी कहि परिबा तो जदी दुईटा चार्ज एयर बा वैक्यूम बा फ्री स्पेस रे अछि तो k को हमें कोन लिखिबा k को हमें लिखिबा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके तो ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखले में एप्सिलॉन देखो एटा होची एप्सिलॉन सिंबल और जो जीरो लिखाई ताके में नॉट पढिबा एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट रा मीनिंग कोन आ तार वैल्यू केते एप्सिलॉन नॉट को हमें कहिबा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बा वैक्यूम electrical permittivity of free space by vacuum. So now look at this value of k होची कते ना 1/4 pi epsilon naught तो 1 तो गोटे कांस्टेंट नंबर टा 4 भी गोटे नंबर पाई भी गोटे नंबर तो जो एप्सिलॉन नॉट अछि एप्सिलॉन नॉट रा वैल्यू केते आसीबो ता पर डिपेंड करिवो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k तो एप्सिलॉन नॉट को हम कोन कहबा राहुची इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ कहार फ्री स्पेस बा वैक्यूम बा एयर और तार वैल्यू केते तार वैल्यू आसीबो 8.854 into 10 to the power minus 12 8.854 into 10 to the power minus 12 आउ तार यूनिट कोन आसीबो तार यूनिट आसीबो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2 ठीक अछि सो यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ दिस एप्सिलॉन नॉट ताके में कहिबा को ताके में कहिबा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ तार वैल्यू केते ना 8.854 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड मीटर टू द पावर -2 ठीक अछि तो जदी हमें एप्सिलॉन रे वैल्यू केटी पुट कर दबा तो k रे वैल्यू केते पाइबा k रे वैल्यू केते हे जिवो एटा हे जिवो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2 ठीक अछि तो आमे देखले जे जते बे आमे दुईटा चार्ज भितरे फोर्स बाहर करूचे इन वैक्यूम बा इन एयर बा इन फ्री स्पेस तो से केस रे आमे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूचे आमे जो कांस्टेंट k को मल्टीप्लाई करूचे से k रा वैल्यू केते आसुची 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एंड k रा एक्सप्रेशन रे आमे जो गोटे सिंबल यूज करूचे एप्सिलॉन नॉट ताके में कहूचे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड तार वैल्यू केते ना 8.854 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड मीटर टू द पावर -2 तो जदी हमें मीडियम को चेंज करी करी जिबा तो कौन चेंज हेबो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी चेंज हेबो फ्री स्पेस बा एयर पाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैल्यू केते एथि किंतु जदि हमें वाटर कंसीडर करिबा किबा ग्लास कंसीडर करिबा किबा जे कोन से गोटे अलगा मीडियम कंसीडर करिबा तो मीडियम चेंज हेले इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैल्यू चेंज हेबो आ जदि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैल्यू चेंज हेबो तो डेफिनेटली k रे वैल्यू चेंज हेबो आ जदि k रे वैल्यू चेंज होला तो ऑब्वियसली फोर्स भी चेंज हेबो किंतु मन रखो जे मोस्ट ऑफ द केसेस बा बाय डिफॉल्ट हम जते कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो
we assume that the two charges are present in vacuum. जदि क्वेश्चन रे मेंशन थिबो जे the two charges are inside wood or inside plastic, inside glass or inside water, but जे कोनसी मीडियम कहिथिबो, then you can put the corresponding values. But most of the cases आमे जरे किसी problem solve करू, we always assume that by default जा कहंती the medium is free space or vacuum or air. ठीक अछि. तो आमे बे कोन देखले कूलम्बिक फोर्स को हिसाब करिया पई आमे जो फॉर्मूला पाइले कोन ना F इन वैक्यूम बा फ्री स्पेस रे फोर्स केते हबो सेटा हिजबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर बा जदि मु आर वैल्यू को लिखिबी द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बा k रे वैल्यू एटा केते हिजबो 9 * 10 to the power 9 9 * 10 to the power 9 q1 * q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो हमें एई फार्मूला यूज करके दुटा चार्ज भितरे फोर्स बाहर करि परिबा इफ द टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम. ओके, तो हमें देखिबा एई जो लिखाई जो फार्मूला एई फार्मूला को यूज करके हमें डिफाइन करिबा द SI यूनिट ऑफ चार्ज. हमें जानि छे जे द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. तो हमें कूलम को केमती डिफाइन करिबा यूजिंग दिस फार्मूला. लेट अस डिस्कस अबाउट इट. तो सपोज आमे जो दुटा चार्ज नेचे q1 और q2 सपोज से चार्ज रो वैल्यू केते 1 कूलम तमने q1 होची 1 कूलम q2 भी केते 1 कूलम एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 1 मीटर. सपोज हम पाके दुटा चार्ज अछि से दुटा चार्ज रो वैल्यू केते 1 कूलम एंड समान के भितरे डिस्टेंस बा सेपरेशन केते अछि 1 मीटर अछि. तो जदि हमें एंड assume that they are in vacuum, the two charges are in vacuum by free space. So what will be the coulombic force but what will be the electrostatic force between them? तो F केते हिजबो F vacuum केते हिजबो एटा 9 * 10 to the power 9 into q1 केते 1 कूलम q2 केते 1 कूलम. तो 1 * 1 डिवाइडेड बाय r केते r होची 1 तो 1 रो स्क्वायर केते हो 1 हिजबो. तो मैं आंसर केते पाइबा आंसर पाइबा 9 * 10 to the power 9 न्यूटन केते पाइबा 9 * 10 to the power 9 न्यूटन. तो एथे में कोन जाने को पाइले जदी हमें दुईटा चार्ज नबा 1 कूलम मैग्नीट्यूड रो एंड इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज 1 मीटर एंड दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम बा इन फ्री स्पेस then the electrostatic force between them will be 9 * 10 to the power 9 न्यूटन. तो एबे हमें केमती डिफाइन करिबा SI यूनिट को ना हमें लिखिबा रे एठी जे 1 कूलम is that value of charge by is that magnitude of charge which when placed at a distance of 1 meter from another identical charge in vacuum it experiences a force of 9 * 10 to the power 9 न्यूटन. ठीक अछि. तो हमें एई वे रे हमें डिफाइन करि परिबा द SI यूनिट ऑफ चार्ज बा जहा को हमें कहूचे 1 कूलम. सो 1 कूलम होची सेही वैल्यू बा सेही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज which when placed at a distance of 1 meter from another identical charge. ता माने गोटे 1 कूलम चार्ज को हमें कोन करिबा आउ गोटे 1 कूलम चार्ज थारू 1 मीटर डिस्टेंस रखिबा कोठी को मीडियम रे इन वैक्यूम then it will experience a force of 9 * 10 to the power 9 न्यूटन. ठीक अछि. तम ऑलरेडी देखि देले बा प्रूफ करले फ्रॉम दिस formula. So this is the way you can define the SI unit of charge which is coulomb. Okay. तो एबे मैं डिस्कस कर साले जे जदि दुटा चार्ज थिबे वैक्यूम रे बा फ्री स्पेस रे बा एयर रे तो हमें केमती
ताका भितर फोर्स को हमें कैलकुलेट करबा ठीक अछि। तो नेक्स्ट हमें देखिबा जदि हमें मीडियम को चेंज कर दोचे जदि दुटा चार्ज भितर मीडियम वैक्यूम बा एयर बा फ्री स्पेस न थाए कि किछ अलग मीडियम थिबो लेट अस से वाटर थाई पारे किंबा प्लास्टिक थाई पारे किंबा ग्लास थाई पारे किंबा जे कोन से गोटे अलग मीडियम थिबो तो सेही केस रे हमें केमती फोर्स बाहर करबा। तो मन रख आम जो लिखी जे कूलम्बिक फोर्स रो फॉर्मूला कौन ना K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखी ठीक अच्छे। तो जदि आम माने वैक्यूम विषय डिस्कस कर दुटा चार्ज वैक्यूम अच्छा तो K वैल्यू केते हम K वैल्यू हो 1/4πε0 किंतु जदि आम किसी अलग मीडियम को यूज करवा इन अदर मीडियम माने वैक्यूम को छाड़ला पर जदि अलग किसी मीडियम अच्छी तो से केस रे K को लिखा K को लिखा 1/4πε एठी आम आउ से जो जीरो सिंबल देवानी मन रख एप्सिलॉन नॉट जो आम जीरो सिंबल दौचे दैट सिंबल इज ओनली फॉर वैक्यूम ठीक अच्छे। एप्सिलॉन वर्ड रो मीनिंग होची इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ओके एप्सिलॉन कौन एटा होची इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जदि मैं गोटे जीरो सिंबल दे देली बा एप्सिलॉन नॉट कहली दैट इज ओनली फॉर वैक्यूम ठीक अच्छे। किंतु जदि मुझे अलग मीडियम नौची देन से केस रे मु एठी जीरो सिंबल देबी नहीं आई विल ओनली राइट एप्सिलॉन ओके। तो एप्सिलॉन को मु कौन कहबी आको मैं कहबी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आमे जो मीडियम रे चार्ज को रखीचे से ही मीडियम रो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन जदि मैं चार्ज रखीचे वाटर भितर तो वाटर रो जहाँ थी एप्सिलॉन ताको मैं एठी पुट करबा ठीक अच्छे। तो जेहेतु वैक्यूम रो एप्सिलॉन रो वैल्यू जना अछि जब मैं कहली 8.854 इंटू 10⁻12 किंतु डिफरेंट मीडियम रो एप्सिलॉन वैल्यू हमें मन रखि परिबा नहीं केवल मन रखिबा एयर केते बा वैक्यूम रो केते बा फ्री स्पेस केते व्हिच इज 8.854 इंटू 10⁻12 एंड फॉर अदर मीडियम आमे तको मन रखि परिबा नहीं सेति पई आमे केति मन रखिबा जे अलग मीडियम थिले आमे K को कौन लिखा K हो 1/4πε। तो वर्तमान अलग मीडियम रे फोर्स को आमे केम लिखा जो K लिखा है इन प्लेस ऑफ K आई कैन राइट 1/4πε देन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ठीक अच्छे। तो कूलम्ब्स लॉ रो दुईटा फॉर्मूला मन रखिबो एटा गोटे फॉर्मूला जदि दुईटा चार्ज वैक्यूम रे थिबो बा फ्री स्पेस थिबो से केस में यही फॉर्मूला यूज करबा जदि दुईटा चार्ज थिबो किछि अलग मीडियम रे देन में यही फॉर्मूला यूज करबा ठीक अछि 1/4πε Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर ओके। तो नेक्स्ट आम देखिए कौन जे दुईटा चार्ज भितर फोर्स को मीडियम रे मैक्सिमम आसीबो। तो मन रख जदि में दुईटा चार्ज नहींचे एंड से भितर गैप को हमें फिक्स करेचे बा द डिस्टेंस बिटवीन देम इज फिक्स्ड तो ताको हमें यदि डिफरेंट मीडियम रखिबा तो को मीडियम रे फोर्सटा मैक्सिमम होबो द आंसर इज वैक्यूम। ता माने टू चार्जेस बा 2 पॉइंट चार्जेस एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स बा एक्सर्ट्स मैक्सिमम फोर्स ऑन ईच अदर इन वैक्यूम। जदि भी अलग मीडियम नबा तो अलग मीडियम रे फोर्स रे वैल्यू कमी जिवो केमती कमिवो ताको एबे मैं डिस्कस करिवा। तो एटा होउची वैक्यूम रे जो फोर्स एक्सपीरियंस हबो तार फॉर्मूला एटा कोन एटा होउची अलग मीडियम रे ठीक अछि। तो एबे में कोन करिबा एबे हमें एफ वैक्यूम आउ एफ मीडियम रो रेशियो नै जिवा ठीक अछि। एफ वैक्यूम आउ एफ मीडियम रो रेशियो नबा तो एफ वैक्यूम को कोन लिखिबी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एफ मीडियम को कोन लिखिबी 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एटा कैंसिल हो जिवो तो आमे कोन पाइबा एठी ना 1/4πε0 एटा उल्टी जिवो एटा हो जिवो 4πε। तो 4π कैंसिल हो जिवो आमे कोन पाइबा एठी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन ठीक अछि। तो एप्सिलॉन कोन होउची एप्सिलॉन होउची आमे जो अलगा किछि मीडियम नेचे सेही मीडियम रो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट कोन ना फ्री स्पेस बा वैक्यूम रो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो आमे ए जो रेशियो पाइले एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट एटा होउची गोटे यूनिटलेस
आउ डायमेंशनलेस कांस्टेंट बा यूनिटलेस डायमेंशनलेस रेशियो कहीं एप्सिलॉन आउ एप्सिलॉन नॉट बोथ आर द सेम यूनिट बोथ आर द सेम डायमेंशन ठीक अच्छे तो सेमानकर जो रेशियो पाइबा ये से रेशियो किसी भी यूनिट रही आउ किसी भी डायमेंशन रही तो यही जो रेशियो पाइले एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट यही रेशियो को हमें कहवा कौन एप्सिलॉन आर कौन कहवा एप्सिलॉन आर ताको हमें कौन पढ़ा आपको हमें कहवा रिलेटिव परमिटिविटी देखो रिलेटिव वर्ड रो मीनिंग कौन जिते बड़े आम दुईटा जिनस को आम कंपेयर करती दुईटा क्वांटिटी को आम कंपेयर करती ताको हमें कहवा रिलेटिव वर्ड यूज करवा सपोज मुझे कहबी रिलेटिव डेंसिटी ता माने रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर तार माने कौन मु कॉपर डेंसिटी को कंपेयर करी विथ द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ठीक अच्छे तो जिते बड़े आम दुईटा जिनस को कंपेयर करती से आम रिलेटिव वर्ड यूज करते तो ये क्या कंपेयर करुचे आम माने गोटे मीडियम रो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को आम कंपेयर करुचे विथ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट जो रेशियो बाहर करुचे ताको मैं कहूचे रिलेटिव परमिटिविटी बाय एप्सिलॉन आर आ मन लगता इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी रो वैल्यू इज मिनिमम फॉर वैक्यूम ठीक अच्छे द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज मिनिमम फॉर वैक्यूम और आम यदि अलग मीडियम नबा देन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन विल बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट सो रिमेंबर दैट एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट एटा भलसे मन रखिबो वैक्यूम रो परमिटिविटी होची मिनिमम आम यदि अलग मीडियम नबा देन तार परमिटिविटी अधिक आसीबो सो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट देन एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट ये जो रेशियोटा डेफिनेटली 1 रु अधिक आसीबो ता माने कौन ता माने होची एप्सिलॉन आर भी कौन हबो 1 रु अधिक आसीबो तो एप्सिलॉन आर को आमे कहूचे रिलेटिव परमिटिविटी ता छड़ा तार आउ गोटे भी ना अछि ताको में कोन कहबा ताको में कहि परिबा और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ठीक अछि ए टर्म को भलसे मन रखिबो आइदर आमे कहि परिबा रिलेटिव परमिटिविटी किंबा आमे कहि परिबा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओके तो एबे में कौन देखले एबे हमें देखले जे एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट केता होची एटा हे जाउची एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर दैट implies I can write एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ता माने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू relative permittivity of the given medium is equal to the permittivity of that medium ठीक अछि तो एबे हम देखिबा f medium हमें देरे गोटे मीडियम रे दुटा चार्ज भितरे फोर्स बाहर करंती हमें कोन लिखंती ना 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर ताको हम लिखि परिबी f medium is equal to 1/4 पाई इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन लिखि परिबी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ठीक अच्छे बिकज एप्सिलॉन कौन एटा होची एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू q1 q2 बाय r स्क्वायर तो आपको लिखि परिबे जे f मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर ताको बाहर नहीं होची इनसाइड ब्रैकेट में कौन लिखिबी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर नाउ लुक एट द ब्रैकेट भितर कौन अच्छी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 बाय r स्क्वायर अच्छी ता माने जदि आमे जो दुटा चार्ज नैचे इफ द टू चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम बा इन फ्री स्पेस तांको भितर फोर्स केते आसीबो एतिक आसीबो किंतु जदि मु सेही सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस रे किछ अलगा मीडियम रखिबी देन द फोर्स विल बी दिस मच बा एटा आसीबो तो एति की जो लिखा है वैल्यू कौन एटा होची वैक्यूम रे फोर्स आ एटा कौन एटा होची हमर अलगा मीडियम रे फोर्स तो हम लिखि पारिबे जे f मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r into f vacuum this is f vacuum and आम कौन मल्टीप्लाई करचे we have multiplied 1/एप्सिलॉन r ताको हम लिखि परिबा f vacuum divided by एप्सिलॉन r
ठीक अच्छे ताने जदि देख ये जो आम जो फर्मूला पाइले यही फर्मूला पर भी क्वेश्चन आसो ताने जदि दुईटा चार्ज भितर फोर्स इन वैक्यूम गिवन अच्छे तमें सपोज आम पाखे दुईटा चार्ज अच्छे Q1 Q2 and the separation between them is R. First they are placed in vacuum and the force between them is found to be F vacuum ठीक अच्छे एंड ताको भी कौन करवा से सेम चार्ज दिरे को हमें नेकी गोटे अलगा मीडियम रखिदेवा जो मीडियम रो रिलेटिव परमिटिविटी आमको गिवन थी जानथिबा सपोज एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम तो से मीडियम रे न्यू फोर्स केते आसीबो दिस मच एफ मीडियम केते हिजबो एफ मीडियम हिजबो एफ वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर ठीक अछि बा हमें एटी डिवाइड कर देबा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो मन रखिबो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट ता माने गोटे मीडियम रो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम जो रेशियो पाइबा दैट रेशियो इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी बा ताको में कहि परिबा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पई हमें को सिंबल यूज करिबा हमें यूज करिबा कैपिटल के ठीक अछि देखो ये कंफ्यूज होबनी हमें एठी जो k लिखिथिले F = k Q1 Q2 r स्क्वायर से जो k सेटा होजी कूलम्स कांस्टेंट F = k Q1 Q2 r स्क्वायर ए जो k लिखाई छि एटा होजी कूलम्स कांस्टेंट सेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नो एटा होची डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें जो लिखु छे एप्सिलॉन r सेटा होची डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा तक में कहि परिबा रिलेटिव परमिटिविटी तो मन रखो रिलेटिव परमिटिविटी जहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो किछि भी यूनिट न थाए इट इज कंप्लीटली यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस इट इज ए प्योर रेशियो ठीक अछि तो हमें आज कोन कोन सिखले हमें सिखले जे हाउ टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स बाय यूजिंग कूलम्स लॉ एंड हमें कौन देखले एठी दुईटा चार्ज पार्टिकल भितर जो फोर्स थाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेटा अट्रैक्टिव हे पारे किबा रिपल्सिव हे पारे एंड से जो फोर्स को हमें केमती हिसाब करिबा जदी हमें देखिबा जदी दुईटा चार्ज वैक्यूम रे अछंती देन से केस रे हमें लिखिबा कोन द फार्मूला इज F vacuum is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by r square जदि में से सेम चार्ज को लेके रखि देबा किसी अलगा मीडियम रखिबा तो से अलगा मीडियम रे फोर्स केते हबो एटा हे जिवो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by r स्क्वायर बाकु में लिखि परिबी 1/एप्सिलॉन r into F vacuum बाकु में लिखि परिबी F vacuum by एप्सिलॉन r तम F मीडियम केते हे जिवो F मीडियम हे जिवो 1/एप्सिलॉन r टाइम्स A vacuum बाकु में लिखि परिबी 1/k टाइम्स ऑफ F vacuum तो k कोन एठी k को हमें कहिबा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मन रखो k होची डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड व्हाट इज एप्सिलॉन r एटा होची रिलेटिव परमिटिविटी ठीक अछि एंड बोथ आर सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जहा रिलेटिव परमिटिविटी से ठीक अछि अब में कौन जान ले ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रा वैल्यू केते 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2 एप्सिलॉन नॉट रा वैल्यू केते एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट को हमें कहिबा द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बा वैक्यूम बा एयर तार वैल्यू केते आसीबो 8.854 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर n इनवर्स मीटर टू द पावर -2 ठीक अछि सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलम्स लॉ तो जदि मैं चाहिबा टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ 1/एप्सिलॉन नॉट किंबा द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी हमें इजीली बाहर कर दे परिबा देखो f कोन f होची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by r स्क्वायर तो देखो ये जो 1/4 पाई अच्छी इट इज डायमेंशनलेस सो टू फाइंड द डायमेंशन यू कैन इग्नोर दिस नंबर्स लाइक तो एबे एप्सिलॉन नॉट केते हबो Q1 Q2 by f r स्क्वायर ठीक अछि हमें एबे देखो एटा माने फार्मूला नुहे बट टू फाइंड डायमेंशन हमें एठी 4 पाई को इग्नोर कर देबा
तो Q कौन Q होची चार्ज सो Q1 गोटे चार्ज Q2 गोटे चार्ज आउ चार्ज कौन डायमेंशन A1 T1 कहीं हम जानचे जे चार्ज इक्वल टू IT करंट इनटू टाइम तो फॉर करंट आम लिखा एम्पियर पावर 1 फॉर टाइम यू कैन राइट T टू द पावर 1 तो Q रो डायमेंशन कौन हम A1 T1 तो Q2 में कौन हम से सेम A1 T1 तो दुईटा चार्ज अच्छी डिवाइड बाय फोर्स फोर्स कौन ना M1 L1 T -2 एंड इठी कौन अच्छी R स्क्वायर R कौन R होची डिस्टेंस बा लेंथ तो तार स्क्वायर हो जिवो ठीक अच्छे तो ये कौन हम देखो एटा हो जिवो m टू द पावर -1 एठी L अच्छी एठी L स्क्वायर अच्छी L टू द पावर 3 दि ऊपर जीवो L टू द पावर -3 हो जिवो देन देखो ऊपर कौन अच्छी T1 माने T रो स्क्वायर अच्छी तले अच्छी T रो पावर -2 तो T रो पावर -2 ऊपर गले T रो स्क्वायर हो जिवो तो ऑलरेडी गोटे T स्क्वायर थला आ गोटे T स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जिवो सेरा हो जिवो T टू द पावर 4 and then we have A1 and A1 जो होची A to the power 2 ठीक अछि बा A स्क्वायर so this is the dimension of epsilon naught okay तो जदि मैं कहबा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डायमेंशन कोन हबो एटा भी बहुत इजी जिंस आमे कोन करबा खाली जो पावर अछि एप्सिलॉन नॉट रे जहा भी पावर अछि तारा साइन चेंज कर देबा त माने एटा हे जिवो m टू द पावर 1 l टू द पावर 3 t रे पावर -4 a रे पावर -2 जो सब पावर प्लस ला को माइनस कर ली आ जो सब पावर माइनस ला तक प्लस कर ली बिकॉज़ यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल सो एई वे रे आमे इजीली डायमेंशन बाहर कर दे परिबा ठीक अछि किंतु एटा त माने क्वेश्चन रे आसेनी आमे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला कोन एटा वैक्यूम रे फोर्स केमती बाहर करबा आउ मीडियम रे फोर्स केमती बाहर करबा ठीक अछि आउ जेमती मु कहली यदि वैक्यूम रे फोर्स हमको मालूम अछि एंड आमे ताकू जो मीडियम को शिफ्ट करबा से मीडियम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा रिलेटिव परमिटिविटी हमको मालूम अछि देन आमे से मीडियम रे केते हबो फोर्स आमे बाहर कर दे परिबा गोटे मु सिंपल एग्जांपल कहबी सपोज इमेजिन करो हम पाखरे दुटा चार्ज अछि से चार्ज भितरे फोर्स केते वैक्यूम रे सपोज वी हैव टू चार्जेस एंड the two charges are separated by a distance r the force in vacuum is let us say 9 newton कते 9 newton ताको में कोन करबा से चार्ज जो नेके हमें ताको रख देबा का भितरे इन वाटर ठीक अछि जदि को वाटर भी रख देबे इन वाटर से सेम डिस्टेंस रे तो वाटर भितरे फोर्स कते हबो f in water सेना कते हबो ना f vacuum divided by the dielectric constant of water it कौन लिखा है F medium is equal to F vacuum by relative permittivity of that medium by F vacuum by the dielectric constant of that medium and water dielectric constant कहते 81 कहते 81 so F vacuum कहते 9 Newton divided by K of water by epsilon R of water एटा कहते एटा होची 81 तो केते आंसर 1/9 न्यूटन ठीक अछि सो मन रखो दुईटा चार्ज भितरे फोर्स मैक्सिमम आसीबो वैक्यूम रे बा फ्री स्पेस रे जदि में मीडियम को चेंज करबा अलगा मीडियम रे फोर्स लेवल जेमतली कमी जिवो ठीक अछि आ केते टाइम्स कमीबो k टाइम्स कमी जिवो k कोन k होची से मीडियम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज दैट क्लियर सो आज में डिस्कस कौन कौन कले आमे डिस्कस कले व्हाट इज कूलम्स लॉ तार स्टेटमेंट कौन एंड हाउ टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम then we discuss about how to find the force between 2 point charges in other medium what is the meaning of electrical permittivity what is the value of permittivity of free space and how to find the force between two point charges in a given medium if we know its dielectric constant and we have knowledge about the force between the same 2 point charges in vacuum ठीक अछि तो एई सब फार्मूला को बेस करके हमें बहुत गुडे क्वेश्चंस भी सॉल्व करि परिबा तो नेक्स्ट क्लास रे में डिस्कस करिया कोन जे तुम कहितली जे फोर्स होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी ठीक अछि रिमेंबर दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो आज मैं डिस्कस कले कोन ना हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
तो काली आम डिस्कस करवा हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नॉट हाउ टू फाइंड बट हाउ टू राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स, दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड। तो काली कौन करवा आम काली फोर्स को तार वेक्टर फॉर्म में लिखा, ठीक अच्छे, ताको आम कहवा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक अच्छे। तो अगेन आज आम जहाँ पढ़े मुझे रिवाइज कर दूची, मन रख दुईटा पॉइंट चार्ज भितर जमीती हेले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आसीबो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव। इफ वी हैव two like charges then they will repel each other, but if we have two unlike charges then they will attract each other। तामने पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स। and what is Coulomb's law? Coulomb's law states that the electrostatic force between 2 point charges varies directly with the product of the magnitudes of the two charges, and it varies inversely as the square of the distance between them, and F equal to K Q1 Q2 r square, where K is the Coulomb's constant। First आम जो K पढ़ले that K is the Coulomb's constant, that is small k। देन आम कौन देखले ना जदि आम दुटा चार्ज नहीं Q1 Q2, the distance between them is r and they are kept in vacuum or free space or in air, then the force between them is given by this formula F vacuum equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 r square। and if we have kept the two charges in other medium, then the force is given by 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by r square, where epsilon is known as the electrical permittivity of that medium, ठीक है। and epsilon by epsilon naught, epsilon by epsilon naught आपको मैं कहबा epsilon r बा k और k, तामाने गोटे मीडियम रो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस बा वैक्यूम रो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तार रेशियो को मैं कहबा रिलेटिव परमिटिविटी बा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा रिलेटिव परमिटिविटी has no unit, has no dimension, and the value of epsilon r or k is always greater than 1। आज मैं पचारि जे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर वैक्यूम, वैक्यूम पे k रहले केते एटा 1 हे जिवो, ठीक अछि। कहीं ना आम जो k बाहर करुचे केम बाहर करुचे आम जो मीडियम रा k बाहर करबा सेही मीडियम रा परमिटिविटी को आम डिवाइड करबा एप्सिलॉन नॉट रे। तो जदि मो वैक्यूम रा k बाहर करबी ता माने मते एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड करे के पड़िबो विथ एप्सिलॉन नॉट, सो द आंसर विल बी 1। सो जदि तुमको के पचारिबो जे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द आंसर विल बी 1। and remember that the force between 2 point charges is maximum in vacuum बा in free space, ठीक अछि। तो एबे मो गोटे बोनस फार्मूला कहबी, से बोनस फार्मूला कोन ना आमे कोन देखले जदि दुईटा चार्ज भितरे मीडियम कंप्लीटली वैक्यूम थिबो आमे एई फार्मूला यूज करिबा। जदि दुईटा चार्ज भितरे मीडियम कंप्लीटली किछ अलगा मीडियम थिबो, ग्लास वाटर क्वार्ज किबा वुड प्लास्टिक जहाँ भी थिबो आमे एई फार्मूला यूज करिबा, ठीक अछि। किंतु जदि आमे एमती गोटे केस पाइबा, सपोज Q1 गोटे चार्ज अच्छी Q2 गोटे चार्ज अच्छी, तांका भितरे डिस्टेंस केते r अच्छी, द डिस्टेंस इज r, किंतु ता भितरे कोन अच्छी t थिकनेस रो गोटे अलगा मीडियम अच्छी, माने कंप्लीटली वैक्यूम नहीं किबा कंप्लीटली अदर मीडियम नहीं। r डिस्टेंस रो कोन हला ना t थिकनेस रो कोन हला t थिकनेस रो गोटे अलगा कठी मीडियम अच्छे, मे बी आ भितर ग्लास थाई पारे, प्लास्टिक थाई पारे, वुड थाई पारे। तो से केस में फोर्स केमती बाहर करबा, तो मन रख ए केस रे फोर्स रो फार्मूला कोन आसीबो 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by r minus t plus t root k whole square। एठी k कौन k होची डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, t कौन t होची थिकनेस, आमे जो गोटे अलगा मीडियम रखीचे तार थिकनेस केते t, त माने r थिकनेस रो
टी थिकनेस रे अलग मीडियम अच्छी आउ आर माइनस टी थिकनेस रे वैक्यूम बा एयर अच्छी बा फ्री स्पेस अच्छी तो से केस रे आमे फोर्स केमती बाहर करबा यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 divided by r minus t plus t root k whole square. So students, I hope that all of you have understood all the concepts that I discussed in this video. But still, if you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. I will be very happy to clear your doubts. आउ जमी कहली आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिबा about the vector form of Coulomb's law. So till then, have a nice day and bye bye.